Hello class 12th. So let's start a new chapter, chapter 6, staffing. As you all know, there are total 5 functions of management. P, O, S, D and C. P planning, O organizing, S staffing, D directing and C controlling. So let's begin with our third function of management, that is staffing. Staffing, yes. स्टाफिंग वर्ड समझते ही बेटा सबसे पहले आपके माइंड में क्या स्ट्राइक हो रहा है, हम इस चैप्टर में किससे रिलेटेड बात करने वाले हैं? यस, एब्सोल्युटली स्टाफ से रिलेटेड. तो वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट स्टाफ इन दिस चैप्टर, वी आर स्टडिंग अबाउट स्टाफिंग. तो व्हाट डज दिस वर्ड स्टाफिंग मीन्स? लेट्स स्टार्ट विद द वेरी सिंपल मीनिंग. व्हाट डज स्टाफिंग मीन? स्टाफिंग मीन फिलिंग द वेकेंट पोजीशन. जब भी आपकी कंपनी में वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी को आप स्टाफ से फिल करेंगे. So this filling process is called staffing. Putting people to the job, filling the vacant position is called staffing. Now this was the simplest meaning of staffing, but we will also discuss about the definition of staffing. Definition of staffing. It begins with workforce planning. Here is the word workforce. We can say staff, we can say human resource, we can say workforce. It is one and the same thing. So staffing के अंदर बेटा we start with the workforce planning. And it includes different activities like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation and performance appraisal of workforce. आपने देखा होगा इस definition में कुछ technical words का use हुआ है like workforce planning, recruitment, selection, training, development, promotion, compensation, performance appraisal. बेटा ये सारे words जो इस definition में use हुए हैं, I'll not explain these words in the definition of staffing. ये सारे के सारे words staffing के process में use हुए हैं. तो as soon as I will explain the staffing process, all these technical words will be clear to you. Then I'll come back to the definition of staffing. So I'm not starting my lecture with the definition. I'm starting my lecture with the staffing process. क्योंकि जैसे ही बेटा मैं आपका staffing process complete करा दूंगी, automatically आपकी definition prepare हो जाएगी. तो let's start staffing process steps. Estimating manpower requirement, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning, and the last one is compensation. Let's start with these steps one by one. The staffing process begins with estimating manpower requirement. सबसे पहले बेटा स्टाफिंग के प्रोसेस में हम ये एस्टिमेट करेंगे हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है. हमारी कंपनी में वैकेंसी आई है बट कितने लोग हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट डज नॉट ओनली मीन्स द नंबर, हमें कितने लोग चाहिए, इट ऑल्सो इंक्लूड द टाइप ऑफ पीपल वी रिक्वायर इन आवर जॉब. तो बेटा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ द थिंग्स, the number and the type of people. किसी भी कंपनी को चलाने के लिए we need people of different background, different qualification, different experience, different professional background. तो यहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर कर चलेंगे कि हमें कितने लोग चाहिए और किस टाइप के लोग चाहिए हमें. जब हम एस्टिमेट करते हैं हमें कितने और किस टाइप के लोग चाहिए, तो इसके अंदर दो चीजें और एनालाइज करते हैं. तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस. अब क्या होती हैं दोनों टर्म? वर्कलोड एनालिसिस मींस द नंबर एंड टाइप नेसेसरी. हम पहले ये कैलकुलेट कर कर चलेंगे हमें कितने और किस टाइप के लोग चाहिए, नेसेसरी. अनदर टर्म इज वर्कफोर्स एनालिसिस. दिस टर्म सेज द नंबर एंड टाइप अवेलेबल. आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं? वर्कलोड, वर्कफोर्स. वर्कलोड मीन्स नंबर एंड टाइप नेसेसरी. वर्कफोर्स मीन्स नंबर एंड टाइप अवेलेबल. मीन्स हमें अभी हमारे पास कितने लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं. आप दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे, कितने और किस टाइप के हमें चाहिए और कितने और किस टाइप के ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं. जब आप एस्टिमेटिंग में ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर कर चलते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वेदर योर स्टाफ इज अंडर स्टाफ, वेदर यू आर ओवर स्टाफ और यू आर ऑप्टिमली स्टाफ. मीन्स मैंने एस्टिमेट करा मुझे अपनी कंपनी में 15 लोगों की जरूरत है एंड ऑलरेडी इन माय कंपनी 10 पीपल आर वर्किंग. मीन्स आई एम अंडर स्टाफ. मेरे पास 5 स्टाफ की कमी है, तो यहाँ पर मैं अंडर स्टाफ्ड हूं. ये इसी स्टडी से रिवील हुआ. या फिर मेरी कंपनी में 15 पीपल काम कर रहे हैं एंड आई थिंक आई रिक्वायर ओनली 12 पीपल.
जब मैंने इस चीज को कैलकुलेट करा तो मेरे काम के लिए 12 पीपल वर सफिशिएंट। तो यहां पर मुझे पता चला कि मेरा स्टाफ ओवर स्टाफ्ड है। थर्ड केस, जब मैंने एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट करा, वर्कलोड वर्कफोर्स एनालिसिस की तरफ गई, तो आई केम टू नो कि मुझे 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है और 15 ही ऑलरेडी मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आई एम ऑप्टिमम स्टाफ। कम होते तो मैं वैकेंसी निकालती, ज्यादा होते तो कैंडिडेट को हम निकालते हैं अपने काम से। तो ये सारी स्टडी आती है बेटा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट टेल्स यू the number and type of people you require and it also calculate workload। the number and type, लोड है हमारे ऊपर तो हमें और की जरूरत है। हिंट बनवा रही हूं मैं आपके लिए, लोड है काम का तो वर्कफोर्स और चाहिए, तो नंबर एंड टाइप नेसेसरी। एंड वर्कफोर्स तो कहते ही बेटा उनको है जो ऑलरेडी काम कर रही हो। तो वर्कफोर्स मीन्स द नंबर एंड टाइप अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। If you will be calculating this, you will come to know whether you are understaffed, overstaffed or optimally staffed. This was the first step. तो once you have estimated हमें कितने और किस टाइप के लोग चाहिए, अब आप उस वैकेंसी को नोटिफाई करेंगे। आप उस वैकेंसी को अपनी एडवर्टीजमेंट देंगे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, naukri.com, jobstreet.com. There are various options. We will be discussing later on these options. तो आप एस्टिमेटिंग के बाद जब हम अपनी वैकेंसी को नोटिफाई करेंगे, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स वी आर सर्चिंग द कैंडिडेट्स। जब हमने नंबर एंड टाइप कैलकुलेट कर लिए, अब हमें जैसे हमें कैंडिडेट चाहिए हम उन्हें सर्च करेंगे। दिस सर्चिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट and stimulating them to apply for the job। हम उन्हें सर्च करेंगे, द प्रोस्पेक्टिव, जिस तरह के लोग हम चाहते हैं हम उसे सर्च करेंगे अपनी वैकेंसी को नोटिफाई करके डिफरेंट सोर्सेज में, और लोग हमारे पास अप्लाई करेंगे। तो सर्चिंग एंड टेलिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का बेटा एक बहुत अच्छा बेनिफिट है दैट वी यूज टू गेट पूल ऑफ कैंडिडेट। मींस अगर मेरी कंपनी में 5 भी वैकेंसी आई है और मैं उस वैकेंसी को नोटिफाई करती हूँ, एडवर्टीजमेंट देती हूँ, तो हमारे पास पूल ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। वैकेंसी 5 की है, ऐड देने से ही हमारे पास 10, 20, 30 रिज्यूमेज हमारे पास आ जाएंगे। तो वी गेट वाइडर चॉइस, हमारे पास चॉइस बढ़ जाती है बिकॉज वी आर गेटिंग द पूल ऑफ कैंडिडेट। तो दिस सर्चिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। नाउ वी हैव गॉट द पूल ऑफ कैंडिडेट। अब हम सबको तो नहीं रखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स वी विल बी चूजिंग द बेस्ट फ्रॉम दोज पूल ऑफ कैंडिडेट। जो हमारे पास रिक्रूटमेंट के टाइम पूल ऑफ कैंडिडेट आए थे उनमें से सिलेक्ट करना इज कॉल्ड सिलेक्टिंग। कैसे सिलेक्ट करेंगे? एप्लीकेशंस आएंगी, उन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग करेंगे, लाइक उन्हें छटाई करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी एप्लीकेशंस है उसकी स्क्रीनिंग करी जाएगी। फिर उन कैंडिडेट के टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होगा, तब जाके सिलेक्ट होंगे। इस सिलेक्शन के बारे में भी बेटा आगे हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल जब हमारे पास एस्टिमेट कर लिया, हमने एड निकाल के हमारे पास पूल ऑफ कैंडिडेट आ गए, अब हम उन कैंडिडेट में से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्टिंग द बेस्ट from the pool of candidate is called selection. Now you have selected your candidate, so you will move to the next step. Next step is placement and orientation. Placement means putting people to the jobs for which you have been selected. आपने उन लोगों को वो काम दिया जिसके लिए आपने सिलेक्ट करा था। तो placement means, this word placement means putting people to the jobs. Rather, I'll say putting the right person at right job is called placement, for which you have been selected. अब वो काम आपको दिया जाएगा, this is called placement. Another word placement के साथ है orientation. What does this word means? जब हम कैंडिडेट को काम पर लाते हैं, उनको उनकी ड्यूटीज देते हैं, तो there is a time for orientation. Orientation means familiarize, socialize, introducing। किसको बेटा? उस
कैंडिडेट को जिसको आपने सिलेक्ट करा है उसको उसका काम दिया है, अब आप इंटायर ऑर्गेनाइजेशन से उसे फेमिलियर कराएंगे, सोशलाइज मिलवाएंगे, सबसे उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, बिकॉज ही इज न्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन। किससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? उसके काम से, उसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशंस, उनके सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, कलीग्स, द एंटायर वर्किंग एटमॉस्फेयर से उस न्यू पर्सन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, फेमिलियर कराया जाएगा, जिससे कि उसके अंदर एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आए, अपनेपन वाली फीलिंग आए। तो उस न्यू कैंडिडेट को हम सबसे इंट्रोड्यूस भी कराते हैं। तो ये दोनों स्टेप साथ साथ चलते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, not only with the people, with the entire organization, with the working rules, with his job, with his duties, हर चीज से उसे इंट्रोड्यूस करवाना is called orientation. Now the next step is training and development. जब एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, everybody want to perform better. हर कंपनी भी बेटा यही चाहेगी हमारे एम्प्लॉइज और अच्छा काम करे, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, उनकी स्किल, नॉलेज, एप्टीट्यूड ये सब आगे बढ़े। तो टाइम टू टाइम कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है फॉर देयर डेवलपमेंट। और ट्रेनिंग देने से, व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्किल, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज सो दैट दे परफॉर्म बेटर। जब एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी डेवलपमेंट भी होती है, और इस ट्रेनिंग देने से दोनों को फायदा होता है, कंपनी एज वेल एज एम्प्लॉइज। व्हेन एम्प्लॉइज विल बी गिवन ट्रेनिंग, दे विल वर्क हार्डर, दे विल इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, उनका करियर आगे बढ़ेगा, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ेगा, उनको प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ेंगे, एंड विद दैट कंपनी को भी फायदा है। क्यों बेटा? जब हमारे एम्प्लॉइज अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो डेफिनेटली इट विल इंप्रूव आवर प्रोडक्टिविटी एंड विल लीड टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो इससे कंपनी और एम्प्लॉय दोनों को फायदा होता है जब एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाती है। सो आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। हियर अप्रेजल मीन्स इवैल्यूएट आफ्टर द एम्प्लॉइज हैव अंडरगॉन द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। बेटा हम अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे चुके हैं, काम को अच्छे से समझा चुके हैं, अब टाइम है उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, मीन्स इवैल्यूएट करना। टाइम टू टाइम हर कंपनी ईयर में, लाइक आफ्टर द हाफ सेशन और एट द एंड ऑफ ईयर अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करती है, इवैल्यूएट करती है। देयर आर वेरियस वेज अप्रेजल फॉर्म्स भरवाए जाते हैं, लाइक आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या टारगेट दिया गया था, उसमें से कितना अचीव हो गया है, आपका अपकमिंग ईयर का क्या टारगेट है, क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है। इस तरह एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेक भी करा जाता है, और चेक करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें फीडबैक भी प्रोवाइड करा जाता है। आप इस पॉइंट में देखेंगे एनसीईआरटी के एंड में लास्ट 3 लाइंस में बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक छोटा सा प्रोसेस दिया हुआ है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड्स 3 स्टेप्स: डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। ट्रेनिंग देने के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, पहला डिफाइनिंग द जॉब, हमने उनकी जॉब को अच्छे से डिफाइन कर दिया है, उनको उनका काम अच्छे से समझा दिया है, ट्रेनिंग हम दे चुके हैं। देन अप्रेजिंग देयर परफॉर्मेंस, अब उनकी परफॉर्मेंस को चेक करा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोवाइडिंग फीडबैक। फिर एम्प्लॉइज को फीडबैक भी उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रोवाइड करा जाता है। आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल, द नेक्स्ट स्टेप इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है प्रमोशन। Everybody in an organization want to rise to the top. कंपनी में हर पर्सन अपनी पोजीशन से और आगे बढ़ना चाहता है, तो कंपनी टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉइज को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज दे, ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जिसमें एम्प्लॉइज अपनी परफॉर्मेंस को दिखाए, और अच्छा दिखाते हैं तो उनको आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाए। What does this word promotion means? Promotion means putting the people at higher position. जिस जॉब पे वो काम कर रहे थे उस डेजिग्नेशन से उसको ऊपर कर देना। पुटिंग द पीपल एट हायर पोजीशन, जहां उनकी अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेटस, ड्यूटीज, इवन सैलरी, डेजिग्नेशन सब बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। यानी उनके करियर में आगे ग्रोथ आ गई, उनकी डेवलपमेंट हो गई। तो प्रमोशन के बाद ही करियर और आगे बढ़ता है। तो प्रमोशन इज पुटिंग पीपल एट अ हायर पोजीशन, जहां आपकी अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेटस, डेजिग्नेशन, इवन सैलरी सब बढ़ जाता है। एंड द लास्ट स्टेप इज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन ऑल्सो मीन्स
Remuneration. In this step, the company will decide about the wages and salary plans for their employees. Employees को किसके according wages and salaries दी जाएंगी. This include every form of payment which is given to the employee so that they perform more better. That is called compensation. Like they will be giving some direct incentives. Compensation बेटा दो तरह से होती है, direct incentive and indirect incentives. Direct incentives means डायरेक्टली जो सैलरी से जुड़े हुए हैं, आपकी परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं, सैलरी मिलना, कमीशन मिलना, आपको बोनस मिलना, ये सब आपकी डायरेक्ट इंसेंटिव्स में आते हैं. एंड इनडायरेक्ट, अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट इंसेंटिव्स, अपार्ट फ्रॉम द वेजेस, सैलरीज, कमीशंस, बोनस, आपको इनडायरेक्ट भी कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती हैं. लाइक इंश्योरेंस फॉर देयर एम्प्लॉयज. अपने एम्प्लॉयज का कंपनी ने इंश्योरेंस करा दिया, दिस कम इनटू इनडायरेक्ट इंसेंटिव. एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दिया. हाउसिंग फैसिलिटीज, काफी कंपनीज में, कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयज जब आते हैं, हो सकता है उनका वो होम टाउन ना हो, उनको घर की फैसिलिटी चाहिए, तो वहां की जो रेंटल इनकम है, रेंटल एक्सपेंडिचर है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है. ये सब चीजें जो अदर देन सैलरी है, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है, लाइक हाउसिंग फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, इंश्योरेंस एम्प्लॉइज का कंपनी ने कराया है, उसका जो प्रीमियम है वो कंपनी पे कर रही है. ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ इंसेंटिव. तो बेटा दिस वाज द एंटायर स्टाफिंग प्रोसेस